So let's start with the third problem of today's Code Forces contest. Goodbye 22. And the problem name is this. Cogs and the number theory, and you have been given basically t number of test cases. You have been given a number n, which is the size of the array. Then you have been given n integers, the array elements. You have to tell that these array elements, if you choose any two elements in this array, whether their GCD is greater than 1 or not. Like you have to check whether there exists a positive integer x. Even if you see the current array elements like 5 7 10, GCD is 5. Let's say if it was 5 7 and 9, right? The array is completely, every two elements in the array having GCD greater than having GCD 1, right? So no, basically all elements are co-prime, let's say 5 7 and 9. Then is there exists any value x? Currently it's good. Sub array, I will say, like if the the array elements are all co-prime, I will say the array is good, like all the GCD is equal to 1. So you have to find any positive number x greater than 0, such that when I add that element x to every element of this array A, then the array which I get after adding those adding that x, the array should also be a good array. Okay? What does I mean by good array? Like I told you that every two elements have, GCD equal to 1. Like every pair of two index, you can choose any pair of two index. So you can see n square pair of indexes are possible in array of size n. So yeah, those, not n square exactly, but yeah, in that range. That elements should have, GCD 1. Let's say now let's take let's focus about this, like over here, 5 7 10. Currently, now basically क्वेश्चन समझ आ गया हमें क्या करना है. एक ऐसा एक एरे दे रखा है, ठीक है. दिस कैन बी, गुड और कैन नॉट बी गुड ऑलरेडी. बट हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एलिमेंट पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 फाइंड करना है, ठीक है, जिसको मैं इसमें ऐड करूं, x को ऐड करूं. फॉर एग्जांपल इसके लिए आंसर 4 है. सो व्हेन आई ऐड दिस, तो इट विल बिकम 11. It will say 5 plus 4 is equal to 9, and 7 plus 4 is equal to 11, 10 plus 4 equal to 14. तो जब ये एरे मैंने ऐड कर दिया, x इक्वल टू मैंने लिया 4, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू मैंने 4 लिया, तो ये बन गया मेरा एरे. नाउ एवरी पेयर ऑफ इंडेक्सेस या एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट है जीसीडी इक्वल टू 1. तो GCD of 9 comma 14 is 1, 9 comma 11 is also 1, 11 comma 14 is also 1. So yeah, so this array is basically satisfying all the conditions for all this. So I will return yes कि it is possible that there exists a number, otherwise no. तो अब मेरे को बताना है कि कैसे मैं बता पाऊंगा कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है नहीं. तो इसके लिए थोड़ा सा देखो, लॉजिक क्या है, रिवर्स प्रोसेसिंग करेंगे, धीरे धीरे लॉजिक समझाऊंगा. एक लाइन का लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा बड़ा लॉजिक है, ठीक है. तो लॉजिक यह है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा कौन से नंबर है जिसकी वजह से वो कंडीशन वायलेट हो रही है. वो है इसका जीसीडी, वो है इसका 5 नंबर. 5 ऐसा नंबर है जिसकी वजह से कंडीशन वायलेट हो रही है. बेसिकली देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज 5, कि जब मैं इसका रिमाइंडर लूंगा या फिर देखा जाए, या रिमाइंडर तो चलो बाद की बात है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 5 जिसके लिए आपके दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जीसीडी ग्रेटर देन 1 है, और वो जीसीडी आपके 5 के बराबर है, राइट. या फिर 5 एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है व्हेन आई चेक टू नंबर्स इन दिस आर बेसिकली कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि दोनों नंबर दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करें. सो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. देयर should be no value of m such that दो नंबर जो हैं, टू नंबर्स इन एरे आर डिविजिबल बाय m. ठीक है, आर डिविजिबल बाय m. ये तो लॉजिक है ना, समझ देख के समझ आ रहा है, क्योंकि अगर 5 और 10 दोनों एक नंबर से डिवाइड हो गए, यानी कि 2 से डिवाइड हो गए या 5 से डिवाइड हो गए, तो क्या होगा, ये इन दोनों का जीसीडी वो नंबर आ जाएगा, कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 1 आएगा ना. वो हमें नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए. वी वांट एवरी टू एलिमेंट ऑफ एरे, गिवन एरे, like can every two element have gcd1. have gcd1 का मतलब no common divisor, no कॉमन डिवाइजर. अब मेरे को ये देखना है कि कोई ऐसा एलिमेंट अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा 5, तो ये आंसर नो आएगा, अदरवाइज आंसर यस आएगा. ठीक है, इफ देयर शुड बी एनी वैल्यू m सच दैट द इज इन नंबर इन एरे, two numbers in the array are divisible by this m.
सो आंसर वुड बी इस केस में नो, अदरवाइज आंसर वुड बी यस। तो देखो अब पता है इस प्रॉब्लम में सेकंड पॉइंट ये आता है कि ये फाइंड करना ज्यादा आसान है कि नो वाले केसेस की कब ऐसा होगा जब दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका जीसीडी ऑलवेज कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल जीसीडी 5 के लिए इसका एलिमेंट ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं देखते हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो क्या मैं अब देखो दूसरी चीज है कि इसको अगर रिप्रेजेंट करूँ मैं, अभी ऐसे तो देख लिया हमने, एक और तरीका है बताने का कि भाई एरे तुम्हारा गलत है, कि अगर एरे में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हो, ठीक है? एरे में 2 ज़ीरो आ रहे हैं मतलब बेसिकली कौन सा नॉट एरे में 2 ज़ीरो, बट एरे मॉड्यूलस m का एक मैं एरे बनाऊंगा, ठीक है? m क्या है यहाँ पे जीसीडी 5, ठीक है? m इज इक्वल टू 5 मैंने लिया हुआ है, एरे मॉडुलस m करा, तो 5 का मॉडुलस कितना होता है 5 से 0, 7 का मॉडुलस कितना होता है 2, 10 का मॉडुलस 5 कितना होता है 0। तो अगर दो जीरो एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब भी वही है कि दो नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली 5 से डिवाइड हो रहे हैं। पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि तुम कुछ ना कुछ प्लस करके ऐसा कर सकते हो ना, मैंने 6 बना दिया, इसको 8 बना दिया और इसको 11 बना दिया, करंटली अब 5 से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है? 5 से डिवाइड नहीं हो रहे पर अब 2 से डिवाइड होने लगेंगे, ठीक है? वो चीज़ भी है। तो अभी केवल 5 पे फोकस करते हैं हम, जो ओरिजिनल एरे में 5 दे रखा था। तो मैं क्या करूँगा, अब जब मैं इसको बढ़ाऊँगा 6, 7, 8, मैं बढ़ा के बताता हूँ इसे, 6, 8 और ये 11। अब इसका मैं मॉडुलस 5 निकालूँगा, तो ये मॉडुलस 6 कितना होता है 1, 8 कितना होता है 3, 11 कितना होता है 1 होता है ना? हाँ। तो अब क्या कोई 2 नंबर इसमें 0 हैं? मतलब अब तुम्हारा एरे, मतलब अब ये बेसिकली 5 नहीं आने वाला तुम्हारा जीसीडी, ये बोल देगा तुम्हारा जो पहले 5 से 2 नंबर डिवाइड हो रहे थे, अब 5 से कोई 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे। चलो ये अच्छी बात हो गई, क्योंकि और ये अब हम बेसिकली, अब मैं ये छोड़ रहा हूँ, अब मैं रिमाइंडर एरे से काम करूँगा। तो जल्दी से जल्दी तुम्हें शिफ्ट हो जाना है अपने नॉर्मल एरे से रिमाइंडर एरे से। तो अब बेसिकली मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमेशा, मतलब ऐसे 2 नंबर एक्सिस्ट करेंगे जो कि कोई ना कोई, जिनके लिए कोई ना कोई जीसीडी निकलेगा। अभी जैसे 131 मेरे को लग रहा है कि भाई ये जीसीडी इसका मतलब कितना है अभी कह नहीं सकते, ठीक है? अगर 2 ज़ीरो नहीं है, अगर इसमें 2 ज़ीरो नहीं है ना इस एरे मॉडुलस एम में, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये 5 के ये दोनों सेम नंबर भी हो सकते हैं जो 1-1 है, ये 1-1 आपका 6-6 भी हो सकता है, ठीक है? या फिर ये आपका 6 और 11 भी हो सकता है, क्योंकि 6 और 11 दोनों का ही के मॉडुलस देखा जाए तो 1 मॉडुलस 5 होता है, ठीक है? तो अब गारंटी कैसे दूँ मैं? गारंटी मैं ऐसे दे सकता हूँ, अगर 5 के कितने रिमाइंडर पॉसिबल हैं, ठीक है? लिखो भाई 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 रिमाइंडर पॉसिबल हैं अगर मैं 5 का रिमाइंडर लूँ। तो मैं कह रहा हूँ आंसर मेरा नो तब होगा जब ऐसा एरे बन जाए मेरा, एरे मॉडुलस m जब बनेगा, तो उसमें 0 भी आपके 2 बार होने चाहिए, 1 भी 2 बार होने चाहिए, 2 भी 2 बार होने चाहिए। छोटा-छोटा एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ तो समझ आएगा अच्छे से। लेट्स से एरे था हमारा 3 के लिए कर लेते हैं यार, कोई सा भी ऐसा एरे ले लेते हैं। m इज़ इक्वल टू 3 ले लिया, 0, 1, 2, तो 0, 0, 1, 1, 2, 2। मैं कह रहा हूँ अगर एक एरे मैंने लिया ARR, उसका मैंने जब मॉडुलस लिया 3 से, तो मैंने एक दूसरा एरे बनाया न्यू एरे, ठीक है? तो न्यू एरे जब मेरा बनेगा वो ऐसा दिखना चाहिए। अगर न्यू एरे शुड बी इक्वल, नॉट ऐसा दिखना चाहिए एग्जैक्टली, बट उसमें 2 ज़ीरो होने चाहिए, 2 1 होने चाहिए, 2 2 होने चाहिए, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ आंसर विल बी नो, बिकॉज़ इस एरे में तुम कुछ भी प्लस कर लो, प्लस x तुम कुछ भी ले आओ, प्लस x की वैल्यू तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1 की पावर 9 रखो, 1 E18 कुछ भी रखते रहो, ठीक है? 1001 लिख दो। एक्स की वैल्यू कुछ भी तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो जो ज़ीरो वाला है वो किसी ना किसी में कन्वर्ट होगा, ठीक है? जब मैंने इसमें 1 ऐड करा तो 0 कन्वर्ट हो गया 1 में, ये 1 0 कन्वर्ट हो गया 1 में, ये 1 कन्वर्ट हो गया तुम्हारे 2 में, क्योंकि मॉडुलस देखो 2 था ना, मॉडुलस 3 था। तो जो मॉडुलस 3 होता है और उसका मॉडुलस 0 है, यानी कि 3, 6, ठीक है? ये मान लो ये 3 नंबर था, ये 6 था। तो 3 का मॉडुलस 3 से 0 होता है और 6 का मॉडुलस 3 से 0 होता है। बट जैसे ही मैं +1 करूँगा तो ये 4 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। 4 का मॉडुलस कितना होता है? 1 होता है। 7 का मॉडुलस भी 1 होता है। तो बेसिकली दे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 0 है वो 1 बनेगा हमेशा, 1 हमेशा 2 बनेगा, और जो m-1 है, m-1 क्या है 2, वो हमेशा 0 बन जाएगा। तो जब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास 2 ज़ीरो हमेशा एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास जब 0 से लेके m-1, ठीक है? अब इसको जनरलाइज़ कर देता हूँ मैं। जब 0, 0 होगा 2 बार, 1, 1 होगा 2 बार, 2, 2 होगा 2 बार, 3, 3 होगा 2 बार, से लेके m-1, और m-1 जब 2 बार होगा, तो जब मैं इसमें इंक्रीमेंट करूँगा x इक्वल टू 1 का, ठीक है? थोड़ा-सा इंक्रीमेंट करके देखता हूँ। तो ये मेरा 1, 1 बन जाएगा, ये 2, 2 बन जाएगा, ये 3, 3 बन जाएगा, ये
ये मेरा बन जाएगा 0 0, ठीक है। बस ये बताना चाह रहा था मैं। अगर यहाँ तक फॉलो हो गया तो फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। दोबारा रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि चीज टफ नहीं है, बस ये एरे मैंने मॉड्यूलस एरे कैसे बना लिया ये देखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ओरिजिनल एरे मेरे को गिवन था, अब 3 वाला एग्जांपल लेके दोबारा से बता देता हूँ। ओरिजिनल एरे मेरे को ऐसे गिवन था जिसके अंदर 1 2 3, ठीक है। और अब इसमें क्या है, जब मैं इसका मॉडुलस 3 से लूंगा ना, जब इसका मॉडुलस 3 से लिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मॉडुलस मैं किससे ले रहा हूँ, 3 से ले रहा हूँ। तो मेरा एरे कैसा बनेगा, 1, इसका मॉडुलस 2 का 2 ही होता है, इसका 0 होता है, ठीक है। 0 1 2, तो जो भी नंबर है वो इस रेंज में आ जाएगा। अब तुम देखो कि ये जो नंबर है ना 1 2 3, इसमें तुम्हारे 2 0 पहली बार ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज गुड है, ठीक है। पर कोई ऐसा नंबर लेके देखो जिसमें आपके 2 0 आ रहे हो, ठीक है। लेट्स से 3 6 और 9, इसमें तो तीनों 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 0 आने का मतलब, और 3 6 और 7 भी लेता ना मैं, तो ये तो मान लो इसका मॉडुलस 1 होता है। ये 2 0 आने का क्या मतलब है, ये दो नंबर का कुछ ना कुछ जीसीडी है, कुछ ना कुछ जीसीडी नहीं है, जिसका मैं मॉडुलस ले रहा हूँ वही है इसका जीसीडी, ठीक है। तो मैं सारे पॉसिबल नंबर्स के लिए चेक करूंगा, मैं लूप लगाऊंगा। 5 के लिए मान लो बच गया, फिर 3 के लिए पकड़ा गया, अभी 3 के लिए इसके जैसे 2 के लिए कैसे बच जाएगा, ये 2 के लिए ऐसे बच जाएगा, क्योंकि जब 2 का मॉडुलस लूंगा मैं तो ये भी 2 का मॉडुलस 1 है, ये 2 का मॉडुलस 0 है, ये 2 का मॉडुलस 1 है। 2 के लिए बच जाएगा, बिकॉज देर आर नो जीरो, नो 2 0। नो 2 0 का क्या मतलब है कि 2 0 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 0 नहीं है, इसका मतलब है ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग बच गया। ये 2 के ऊपर जब मैंने चेकिंग लगाई थी कि ये देखो कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है यहाँ पे जो 2 से डिवाइड हो रहे हो, ठीक है। दो नंबर, एक नंबर है 6, ठीक है, और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो अगर दूसरा नंबर होता तो मैं बोल देता कि ये दोनों नंबर का जीसीडी 2 एग्जिस्ट करता है, विच इज ग्रेटर देन 1। पर अभी इन दोनों नंबर, जब मैंने 3 की कॉरस्पॉन्डिंग चेकिंग लगाई तो फिर इसने बोला इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका 1 है, ठीक है। तो ये बोलेगा कि भाई 2 नंबर ऐसे हैं जिनका मॉडुलस ग्रेटर देन जिसका जीसीडी ग्रेटर देन 1 है, जिसका जीसीडी बेसिकली वही है जो मैं अभी चेकिंग लगा रखी है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, तुम इंक्रीमेंट कर दो फिर कुछ, तो जब तुम इंक्रीमेंट कर दोगे तो ये 1 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो तुम बच गए, फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी तुम बच गए। फिर ऐसी कौन-सा केस है जब तुम बच ही नहीं सकते? वो केस ऐसा है जब तुमने ऐसा ले लिया 0, ज जैसे इसका रिमाइंडर कितना आता है, 3 से इसका रिमाइंडर 0 आता है, 0 आता है, इसका रिमाइंडर 1 आता है। एक और ऐसा नंबर लो जिसका रिमाइंडर 3 से 1 आता है, जिसका 13, 13 का नंबर 3 से 1 आता है, ठीक है। एक और ऐसा नंबर जिसका 2 आता है, 2 किसका आता है, 5 का आता है, और एक और नंबर ले लो जिसका 8, 8 का भी बिल्कुल 2 आता है ना? 2 2। तो अब इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम किसी से भी इंक्रीमेंट करो इसे। जब तुम इसको 1 से इंक्रीमेंट करोगे तो तुम्हारा एरे चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। 3 की जगह 3 प्लस 1 हो जाएगा, 6 की जगह 6 प्लस 1, 7 की जगह 7 प्लस 1। पर मॉड्यूलस एरे में क्या फ़र्क पड़ेगा? बस 0 की जगह 1 1 आ जाएगा, 1 1 की जगह आपका 2 2 आ जाएगा, और 2 2 की जगह आपका 0 0 आ जाएगा। अगर ये हो रहा है ना, अगर 0 0 आ रहा है तो अब अगर अब मैंने ये कहा कि ऐसा क्यों बोला मैंने कि 0 के भी 2 ऑकरेंस लो, 1 के भी 2 ऑकरेंस, और 2 तक के और m-1 तक के 2-2 ऑकरेंस ले लो। क्योंकि 0 किसी ना किसी में, ये सारे नंबर ना आपस में ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि देखो 0 से m-1 सारे नंबर यहाँ से आ गए। मॉड्यूलस हमेशा 0 से m-1 ही आएगा। बेसिकली बहुत सिंपल है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे रैंडमली 0 किसी भी नंबर में चेंज हो जाएगा। 0 चेंज होगा 1 में, 1 चेंज होगा 2 में, और जो अगर m-1 होना चाहिए, क्योंकि m-1 होगा तो ये 0 0 में बन जाएगा। अब तुम कहो कि यार मान लो m-1 तो 0 0 में बन गया और फिर वापस से ये ऐसा बन गया, ठीक है। 1 1, अब जहाँ पे कहीं न कहीं पे तो m-1 आ रहा होगा ना, कहाँ पे आ रहा होगा m-1? एक नंबर पहले शिफ्ट हो गया। तो अब दोबारा इसमें तुम +2 करके देख लो, ठीक है? तो तुमने बोला कि भाई +1 करने पे 2 0 मिल रहे हैं, तो ऐसा मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ भाई, मैं x की वैल्यू 2 लेके चलता हूँ। 2 से मैं बढ़ाता हूँ तो हो सकता है मेरे को कोई 2 0 ना मिले। पर 2 से जब 0 जब तुम 2 से बढ़ाओगे तो जहाँ पे m-2 आ रहा था, ठीक है? m-2 आ रहा था, m-2 आ रहा था, जब इनको तुम 2 प्लस करोगे तो इनकी जब रिमाइंडर 0 0 हो जाएगा, तो तुम बच नहीं पाओगे 2 0 से। हमेशा कभी ना कभी तुम x की वैल्यू 2 कर दो, 3 कर दो, किसी से भी बढ़ाओ। जब 3 करोगे तो तुम्हारा ये m-3 x की वैल्यू जब तुम m-1 कर दोगे ना, तो तुम्हारा 0 0 किसमें प्लस हो जाएगा, m-1 में प्लस हो जाएगा, और तुम्हारा 1 1 की जगह 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तब भी तुम नहीं बच पाए अपने 0 0, 2 0 आ रहे हैं, इसका मतलब दो ऐसे नंबर हैं, एटलीस्ट दो ऐसे नंबर हैं, ठीक है। एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली दो ऐसे नंबर हैं जो बेसिकली डिवाइड हो रहे हैं, और उनका मतलब दोनों को प्राइम नहीं है, ठीक है। इन दोनों का जीसीडी ये नंबर m है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं चेकिंग लगा रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है ये, अब ये दो, ये होना ठीक है। अब ये तभी पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब ऐसे सारे 0 0 1 1 2 2 m-1 तक दो बार आ रहे हो।
तब तुम कभी बच नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि 0 तुम्हारा किसी ना किसी में कन्वर्ट हो रहा होगा और कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो 2 0 में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है? ये चीज़ है, तुम x की वैल्यू कितने से भी प्लस-प्लस कर दो, x की वैल्यू लेट्स से तुम m+2 के लिए m+2 में प्लस-प्लस करोगे तो m में तो ये बन जाएगा, फिर m+2 से दोबारा पीछे से कहानी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मैं सीधा प्रूफ पे आ जाता हूँ। मतलब डायरेक्टली तुम पैटर्न थोड़ा-सा समझना मुश्किल है, पर तुम जितना ज़्यादा इस पे पैटर्न समझने की ट्राई करोगे तुम समझ जाओगे। लाइक 2-3 एग्ज़ाम्पल लेके देखना, स्पेशली ये वाला एग्ज़ाम्पल लेके देखना, 0 ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे 3 वाला। जैसे अगर केवल ऐसा एक भी एलिमेंट मैं इससे छोड़ दूँ, ठीक है? मान लो ये वाला एलिमेंट मैंने छोड़ दिया, m-1 की एक ही अकरेंस आ रही है, यानी कि अब देखो क्या हो रहा है कि जब तुमने रिमाइंडर एरे बनाया तो 0 0 आया 2 बार, ठीक है? 0 आया और फिर 0 आया, 0 आया, फिर 1 आया 1 आया और 2 एक ही बार आया, ठीक है? तो अभी तुम बोलोगे भाई 3 और 6 ऐसे 2 एलिमेंट है जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ना डिवाइड हो रहे हैं, जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो बेसिकली इनका जीसीडी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? अब मैं कहूँगा ठीक है तुम +1 करो, मैं बताऊँ तुम +2 करके देखो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ तुम बच जाओगे, तुम इस एरे को भी सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दोगे एक ऐसे एरे में जिसमें आपके 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे होंगे किसी भी एक कॉमन नंबर, मतलब 3 से, ठीक है? 3 से कॉमन नंबर, अब तुम जनरलाइज़ नहीं कह सकते, ठीक है? पहले इसका जिससे तुमने रिमाइंडर निकाल रहे हो, तो वो नंबर होगा कि अगर मैं इसको 2 से प्लस करूँ, ठीक है? तो ये मेरा 2 बन जाएगा, ये मेरा 2 बन जाएगा और 1 मेरा 1 ही रहेगा, 1 मेरा 1 ही रहेगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। तो 2 से मैं इसको प्लस करके दिखा देता हूँ। ये बन गया 5, ये बन गया मेरा 8, ये बन गया मेरा 9, ये बन गया मेरा 14, ये बन गया मेरा 7। अगर मैंने 2 से प्लस करा, अब देखो इसमें जो ऐसा कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा हो, कौन-सा नंबर है? 9 है। क्या ऐसा कोई दूसरा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा हो? नहीं। कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड हो रहा हो। तो ऐसे मैंने जो 2 नंबर थे जो 3 से डिवाइड हो रहे थे उसको कन्वर्ट कर दिया एक ऐसे एरे में जब 2 नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड हो रहे हो। तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने इसे गुड बना दिया। अब मेरे को चेक करना है एक ऐसा ये जो एरे है ये सारे नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग गुड होना चाहिए। कौन-सा? 3 0 2 1 3 नहीं 0 तो नहीं, मतलब बेसिकली 2 से स्टार्ट करना है हमें। 2 क्योंकि 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो कोई गुड नहीं होगा। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो सबका 0 0 0 आएगा। आई थिंक 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे ही गुड होंगे, क्योंकि नहीं उसमें भी बात ये है कि आपका m-1 ही 0 होता है, तो या 1 को छोड़ दो, 2 से शुरू करेंगे। और अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था भाई कितनी लंबी वीडियो हो गई, 17 मिनट, पर चलो कोई नहीं। तो m-1 आपका 2 बार होना चाहिए, ठीक है? जब m-1 2 नंबर बार है, m-1 2 बार होना चाहिए, मतलब 0 भी 2 बार होना चाहिए, 1 भी 2 बार होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि m की वैल्यू हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी n/2 पे, क्योंकि क्यों रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी? क्योंकि मेरे को जो ये दिखा रहा हूँ मैं, तो मेरे 2 0 होने चाहिए, मेरे 2 1 होने चाहिए, मेरे 2 2 होने चाहिए, तभी मैं बोलूँगा कि पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ तो पॉसिबल है हमेशा। तो अगर मतलब एक भी इसने मिस कर दिया, मान लो 2 मिस कर दिया एक बार होने से, तो मैं बोल दूँगा कि 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये गुड बन सकता है, ठीक है? अभी कॉरेस्पॉन्डिंग अभी तो गुड नहीं है, पर मैं कुछ ना कुछ करूँगा और गुड बना दूँगा। कुछ ना कुछ करने का क्या मतलब है, x की वैल्यू 2 से मैं प्लस कर दूँगा तो गुड बन जाएगा ये, ठीक है? अब बात आती है n/2। n/2 की बात ऐसी है कि n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं ये कहना चाह रहा हूँ 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ऑलवेज़ गुड होगा, ठीक है? ऑलवेज़ गुड है 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्यों? क्योंकि 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब तो इसका मॉडुलस लोगे तो लेके देखो 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका मॉडुलस 3 आया, इसका मॉडुलस 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा। नंबर कुछ भी होते रहे, नंबर बड़े से बड़े क्यों ना हो, लेट्स से 12, 34, 656, 71, 89 और 90। अब इसका मैं मॉडुलस ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है? इसका मेरे को 0 मिलेगा। यहाँ पे जो नंबर बनेगा, ये जो तुम्हारा एरे बनेगा, ये तो 0 से m-1 ही नंबर होंगे ना इसमें अंदर। 6 से बड़ा तो नंबर आ नहीं सकता इसके अंदर। 34 का मॉडुलस लो, 6 से कितना आता है? 4 आता है ना? और 56 का मॉडुलस 6 से कितना आता है? 6 10 जा तो 60 होता ही है, तो 2 आ रहा है इसका, बेसिकली 54 आई थिंक डिविजिबल होता है, 2 आ गया। 71 का मॉडुलस लो, आई थिंक इसका 5 आना चाहिए, है ना? क्योंकि 65 आपका डिविजिबल होता है। 66 तो होता है ना, 66, 66 के बाद 4 इधर 5 इधर, हाँ 5 और 84 आई थिंक डिविजिबल बाय होता है, ठीक है? क्योंकि 12 7 जा 84, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, हाँ। तो 84 के बाद 5 बचा, यहाँ पे 90, 90 तो आपका 6 से तो नहीं डिविजिबल होता, पर 96, 12 8 जा 96 होता है, तो हाँ, बचा कितना? 96 माइनस 6, आई थिंक ये 6 से डिविजिबल होता है। हाँ, डिविजिबल बाय है तो इसका भी 0।
ये आपका एरे बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें आपके कोई भी नंबर, जैसे 0 आपका 2 बार आएगा और आपका 5 2 बार आएगा। सारे नंबर 2 बार आ ही नहीं सकते ना। नंबर कितने हैं? 0 से लेके 5 नंबर हैं। इसको 2 बार आने के लिए तुम्हारे पास टोटल साइज़ कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 10 का साइज़ होना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा था। सिंपल वैसे बता, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि 0 0 1 1 जो तुम्हारा मॉडुलस एरे बनेगा 1 1 और आपका m-1 और m-1। तो ये बेसिकली कितने नंबर हो गए? 2 इंटू m, 2 इंटू m नंबर्स। 2 इंटू m नंबर्स। बेसिकली आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? n नंबर्स हैं। तो m की मैक्सिमम वैल्यू आपकी n/2 हो सकती है। ठीक है? जब n/2 मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी ये पॉसिबल है। अगर n/2 से एक नंबर भी तुमने ज़्यादा ले लिया, तो तुम्हारे पास अब तुम्हें नंबर कितने लाने हैं? तुम्हें लाने हैं 0 0 1 1 और n भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें दोबारा n/2 भी चाहिए तुम्हें और n/2 भी चाहिए। इसका वैल्यू पता है क्या होती है? n/2 इंटू 2। रुक जाओ, n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 इंटू 2। पर इतने एलिमेंट्स तो है ही नहीं तुम्हारे पास, इतने रिमाइंडर कहाँ से लाओगे? ठीक है? तो वही चीज़ है, n/2 तक ही तुम्हें देखना है। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ अब सिंपल से जल्दी से इसको कोड। काफ़ी लंबा लॉजिक हो गया यार, मतलब क्योंकि ये इसमें लॉजिक में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि तुमने एक लाइन ये पकड़ ली और तुमने सिलेक्ट हो गया क्वेश्चन। तुम्हें ये देखना है कि कब ऐसा सिनेरियो बनेगा कि मैं इस नंबर को कभी गुड बना ही नहीं सकता। तो मैं नंबर चूज़ करूँगा, ठीक है? फॉर इंट मैं लूप चलाऊँगा i इक्वल टू तो मेरे को देखना है कि ये जो एरे है, ये किसी एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम्म अगर किसी एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग भी ये हो गया ना गुड, मतलब गुड नहीं बैड हो गया। बेसिकली एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर नंबर m एग्जिस्ट करता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमेशा बैड होगा यार। ये मतलब हमेशा बैड होने का क्या मतलब है? जिसके कॉरस्पॉन्डिंग भाई कुछ भी ऐड कर लो इसके अंदर, प्लस x कुछ भी कर लो, यू नो एरे प्लस एक्स कुछ भी कर लो, दो एलिमेंट ऐसे निकल ही जाएंगे जिनका डिवाइजर m बचेगा ही बचेगा। तो वो ऐसा होगा जब सारे नंबर दो दो बार आ रहे होंगे। क्योंकि अभी तो जैसे कि क्योंकि ऐसे दो दो नंबर होंगे जिसका रिमाइंडर 0 0 हो रहा होगा, तो वो दोनों का डिवाइजर m है बेसिकली। पर तुमने मान लो इस जीरो को हटाने के लिए तुमने कुछ कुछ यहाँ पे 1 1 लाने की कोशिश करी, तो जीरो कहीं और चला गया। ठीक है? फिर तुमने यहाँ पे जीरो जी को 1 1 बनाने की कोशिश करी, तो जीरो तुम्हारा कहीं और, मतलब तुम जीरो को रोक नहीं सकते आने से। ज़ीरो आएगा ही आएगा जब तुम्हारे 0 से m-1 सारे नंबर तुम यहाँ पे ले लोगे। ठीक है? और 2-2 बार आ जाएँगे, क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट 0 2 बार चाहिए। एक बार 0 से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो एक बार 0 आ रहा है तो तुम इसको हाँ, एक बार 0 से काम नहीं चलेगा। 2 नंबर तो एटलीस्ट होने चाहिए ना जो सेम नंबर से डिवाइज़र हो, तभी तो उनका जीसीडी कुछ ना कुछ आएगा। तो वो भी चीज़ है। ठीक है? तो ये तुम्हें चेक करना है, किसी भी एक नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग भी ऐसा ट्रू हो गया तो तुम फॉल्स कर दोगे। एक नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पक्का गलत है। ये अरे मतलब पक्का कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है? हो सकता है कि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये अरे बन जाए, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ना बने। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको कोड करके। 2i लेस देन n/2 i प्लस प्लस। ठीक है? n/2 भी हो सकता है आई थिंक। ठीक है? और तुमने एरे अभी तक इनपुट नहीं लिया है, इंट a ऑफ i इनपुट ले लो और नॉट a ऑफ n। एक बार रिवाइज भी करा दूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो मतलब बहुत सारी चीजें पिजन होल प्रिंसिपल होता है ये बेसिकली, जो मैं कहना चाह रहा था ना कि नीचे n तक ही नंबर n/2 तक नंबर लेने हैं हमें। ये पिजन होल प्रिंसिपल से आ रहे हैं क्योंकि उतने में हमारे सारे रिमाइंडर फिल हो जाएंगे। ठीक है? 0 से m-1 वाले दो दो बार उसके ऊपर हम जाएंगे तो कोई ना कोई एक रिमाइंडर ऐसा होगा कि मतलब एक बच ही जाएगा। तो जैसे m की वैल्यू मान लो तुम 5 देख रहे हो, इस केस में तुम्हारे पास एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर तुम दो बार रिपीट भी कराना चाहोगे, मतलब 0 दो बार रिपीट हो गया, 1 दो बार रिपीट हो गया, 2 दो बार रिपीट हो गया, 6 नंबर तुम्हारे फिल हो गए, अब 3 आएगा। अब 4 तो रिपीट हुआ ही नहीं, 4 एक भी बार नहीं आया। तो ये एरे तुम बोल नहीं सकते कि यार ये एरे हमेशा कुछ ना कुछ बन के ऐसा बन जाएगा कि ये 5 से हमेशा 2 नंबर ऐसे निकले जो 5 से डिवाइड हो जाएँ। अभी तो 2 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, पर मान लो अगर मैंने इसमें +4 ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा मेरा 5 5 और ये बन जाएगा मेरा 4 4 और ये बन जाएगा मेरा कुछ ना कुछ 4 4 लेट्स से, और ये बन गया मेरा, 0 हटाओ यहाँ से, और ये बन गया मेरा 4 2 प्लस 4 कितना होता है? 6 मॉडुलस ये 1 1 3 प्लस 4 कितना होता है? 7 मॉडुलस 2। तो अब कोई भी ऐसा 2 नंबर बचे नहीं जो 5 से डिवाइड हो रहे हो। ठीक है? तो आप गारंटी से नहीं कह सकते, है ना?
जब 2 नंबर ऐसे हमेशा बचेंगे जो 0-0 छोड़ रहे हैं, मतलब आप गारंटी से कह सकते हो कि हाँ भाई ये एरे तो गलत होगा हमेशा। क्योंकि इस नंबर के तुम कुछ भी ऐड कर लो, ऐसा तुम बना नहीं सकते कि इस एरे का जीसीडी सारे एलिमेंट्स का जीसीडी 1 हो जाए, बिकॉज़ 2 एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनका जीसीडी ये नंबर एग्जिस्ट करेगा 5। 5 नहीं, बेसिकली ये नंबर लेस देन n/2 होगा, ये भी चीज़ है। n m हमेशा लेस देन n/2। चलो अब वो बता देता हूँ मैं, वो करना कैसे है। तुम्हें क्या करना है, फॉर लूप ऑटो आई इन दिस एरे, एक काउंटर वेरिएबल बना लो, ठीक है, विक्टर। हर हर मॉड्यूलस के कॉरस्पॉन्डिंग एक काउंटर वेरिएबल बनेगा, काउंटर ये बनेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, तुम्हारा एरे बनेगा। तो काउंटर बेसिकली एरे बना लो या मैप बना लो। अच्छा, अब ये भी चीज है कि तुम वेक्टर भी बना सकते हो, ठीक है। काउंटर की वैल्यू, और फॉर ऑटो नहीं इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये काउंटर का साइज भी ना तुम्हारा आई ही होगा, और इसको मैं एक बार जे कर देता हूँ क्योंकि दूसरा लूप है जे। अब मैं बोलूंगा कि नंबर देखो, ठीक है, काउंटर ऑफ ए ऑफ आई जो तुम देख रहे हो, नहीं ए ऑफ जे तुम जो देख रहे हो, इसका मॉड्यूलस लो तुम ए आई के साथ, ठीक है। इस इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, आईएथ वाले इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडुलस लेंगे तो 0 से आई ही बनेगा। तो इसलिए मैंने वेक्टर रख लिया क्योंकि मेरे पास रेंज रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब मान लो प्लस प्लस हो गया। अब तुम्हें ये चेक करना है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो आपका 2 बार ना आ रहा हो। क्योंकि अगर सारे, हमें बस ये चेक करना है कि क्या सारे नंबर 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑटो आई इन काउंटर इफ all numbers are coming greater than 2, इसका मतलब no number is coming less than 1, no less than 2, ठीक है। एटलीस्ट 2 तो चाहिए हमें ना। हाँ मतलब दो चाहिए, दो नंबर। अभी मैं बस तुम्हें मिनिमल केस की बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता था 3 3 0 आ रहे हो, 3 1 आ रहे हो, 3 2 आ रहे हो, ठीक है। हाँ, बट हर नंबर एटलीस्ट 2 बार आना चाहिए, क्योंकि जब हर नंबर 2 बार आएगा तभी मैं एक कह सकता हूँ कि 2 0 की गारंटी है। अदरवाइज 2 0 की गारंटी नहीं है। अभी है 2 0, पर मैंने इसमें कुछ प्लस कर दिया, 0 कुछ और बन गए, और जो 0 बनना चाहिए था वो अब एक ही बार बना, या फिर हो सकता है वो बना ही नहीं, वो आया ही नहीं यहाँ पे। तो ये चीज़ है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी 1 होगा तो वो एक ही बार 0 बनेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो वो 0 जहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ प्लस करके हम जुगाड़ कर लेंगे कि 2 0 ना आए हमारे मॉडुलस एरे में, यानी कि ये डिवाइड ना हो रहा हो। ये चीज़ काफ़ी बार समझा चुका हूँ मैं, पर हाँ, यही है यार थोड़ा-सा। एंड आई इज़ ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, तो मैं फॉल्स को फ्लैग को 1 कर दूँगा और मैं ब्रेकआउट कर दूँगा। तो इसका मतलब देखो क्या है कि भाई ये तो सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे bool फ्लैग इक्वल टू 0 मैंने रखा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। इफ अगर फ्लैग तुम्हारा 1 हो गया तो ये तो मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को ये देखना है कि फ्लैग तुम्हारा जब 0 रह गया, इसका मतलब सारे नंबर ग्रेटर देन 2 है, मेरे को तो वो चाहिए, वो वाला केस चाहिए। तो मैं पक्का नो बोल सकता हूँ, पक्का गारंटी से, ठीक है। इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, मतलब ये इसमें कभी गया नहीं। इफ f इक्वल टू 1 रह गया, मतलब सारे नंबर आपके, अगर मैंने हाँ इसकी लेंथ जी एन बनाई है तो 0 से n माइनस 1, आई थिंक ये सही होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, इफ f इज इक्वल टू 2 रह गया, इसका मतलब आप कह सकते हो, आप एक आउटर फ्लैग b को कह दो 1, ठीक है। नाउ अपना एक बार आउटर वाले चेक कर लो, इफ b तुम्हारा 1 है तो सी आउट कर दो नो। मतलब एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता था, इसको ही ब्रेक कर दो, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें कुछ भी ऐड कर लो आंसर, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा दो नंबर मिलेंगे जो जिसका रिमाइंडर वो नंबर हो, वो आई वाला नंबर हो। तो bool b इक्वल टू मैंने 0 बना दिया, ठीक है। अदरवाइज हम यस कह देंगे, क्योंकि भाई मतलब जरूरी, मतलब तुम्हारे पास कोई ना कोई चांस है
यू नो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास कोई चांस अगर बचता जा रहा है, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर ऐसा आ गया, एक मॉडुलस के करस्पॉन्डिंग कि भाई बचने का चांस ही नहीं है, तो तुमने नो कर दिया। अदरवाइज सबके करस्पॉन्डिंग अगर बचने का चांस निकला, कहीं पे भी नो नहीं आया तुम्हारा, है ना, ये अब तक फ्लैग वेरिएबल बी ये कभी वन नहीं हुआ तुम्हारा, तो तुमने कर दिया चलो यस कि तुम्हारे पास बचने का चांस है भाई सबके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। काफी मैंने लंबा ये बना दिया आई थिंक, पर चलो इसको सबमिट कर देते हैं फटाफट से यार। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी भाई आज की थर्ड प्रॉब्लम। यस यस की बोल रहा है बचने का चांस है, पर यहाँ पे तो बचने का चांस ही नहीं है। 3 3 4 है, ठीक है। तुम्हारा अभी करस्पॉन्डिंग जैसे 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है इसमें, 0, नहीं नहीं 1 1 0। 2 के करस्पॉन्डिंग तो ये बच गया, ठीक है। और बच गया 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके 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 ओके, तो ये भी तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा आई थिंक। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये तो सोचा ही नहीं हमने। ओके, अगर सारे नंबर ये मतलब ये ट्रिवियल केस है, अगर सारे नंबर डिस्टिंक्ट नहीं है, काफी तरीके हैं मतलब इसको करने की, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सेट इंट एस बना लो और फिर सबको पुश कर दो। एस डॉट इंसर्ट एफ आई, एस डॉट इंसर्ट एफ आई, इफ एस का साइज आपका नॉट इक्वल टू एन है या फिर लेस देन एन है, सीधी बात करो, तो रिटर्न कर दो बेसिकली फॉल्स। सी आउट नो, पॉसिबल ही नहीं है, ये दो नंबर सेम ही है। एल्स आप ये करो काम, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो, पर ट्रिवियल सा केस है, ठीक है। और भाई चलो सबमिट करते हैं इसको। ये कहाँ से आ गया 1 1 0। प्रॉब्लम सी, सबमिट कोड। यस और यस क्यों आ रहा है अब फिर से। अच्छा के गलत आ रहा है भाई, ये के हटाओ। यस और नो, अब इसको सबमिट करते हैं। लॉजिक क्या था प्रॉब्लम का कि सबसे पहले तो ये ट्रिवियल केस चेक कर लो। मेन ये है कि सारे मॉडल्स के लिए हम चेक करेंगे कि सारे इस नंबर के लिए चेक करेंगे कि कहीं ये एरे इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग बैड तो नहीं है। बैड होने का मतलब कि तुम इस नंबर के से इसे बचा ही नहीं सकते, क्योंकि इस नंबर में मतलब ये नंबर जैसे इस केस में तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि जैसे 5 करंटली ऐसे दो नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, पर मैं इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, बट वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, पर ऐसा केस नहीं बना। बैड केस कौन सा है कि जब 0 0 हो जाए से लेके 4 4 हो जाए, कि 5 के कॉरस्पॉन्डिंग सारे जो रिमाइंडर है वो दो बार आ रहे हैं, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीडेड, रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट 2। फोर्थ केस हमारा गलत है बेसिकली, चेक करते हैं क्या है फोर्थ केस। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 'S dot size
आपका पावला जगह है। अच्छा, और वो जो एरे था 337, तो सबमिट करके देखते हैं। अब हो जाना चाहिए भाई ये सबमिट। रॉन्ग ऑन फ्रिस्क इज 4। अच्छा, काफी बड़े नंबर दे दिए। लॉन्ग लॉन्ग लेना है आई थिंक, है ना? तो एक काम करेंगे हम, हैश टैग डिफाइन इंट लॉन्ग लॉन्ग, नो वट या, इसको कर देंगे हम इंट 32 अंडरस्कोर ई। जैसे पहले के लिए आंसर यस है, पर मेरा आंसर नो आ रहा था, तो एक बार इसी को चेक कर लेता हूँ मैं, है ना? अब यस आ रहा है, सबमिट करके देख लेते फिर, और क्या। हाँ, एक्सेप्टेड काफी टाइम बाद। 37 मिनट्स की वीडियो, बट आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए वर्थ इट है। एक बार फिर से मेरे को बताना पड़ेगा लॉजिक। तो सबसे पहले तो बेस ट्रिवियल केस चेक कर लिया, फिर हमने हर नंबर के लिए चेक करा। अब देखो हम निकाल क्या सकते हैं, ये देखना जरूरी है कि हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या ये नंबर बेसिकली जो हम आई करस्पॉन्डिंगली चेक कर रहे हैं, हम बेसिकली कोई भी एक्स की वैल्यू लें तो वो हमेशा ही कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके ऐसे दो नंबर निकल आए जिनका जीसीडी कुछ ना कुछ हो, ग्रेटर देन वन हो। ग्रेटर देन वन क्या, बल्कि जब हम आई के करस्पॉन्डिंग चेक करें तो जिनका जीसीडी अभी बेसिकली, क्या ऐसे दो नंबर हैं जिनका जीसीडी आई है, वो कैसे पता चलेगा? क्या दो बार जीरो आ रहा है? ठीक है, हाँ ऐसे दो नंबर हैं जो इनका जीसीडी आई है। पर क्या ऐसा ज़रूरी है कि मैं कुछ भी ऐड करूँ उसके बाद भी उनका जीसीडी आई ही रहे? हमेशा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कब ज़रूरी है? जब ऐसे चीज़ हो कि 0 भी 2 बार हो, 1 भी 2 बार हो, 2 भी 2 बार हो और m-1 m-1 भी 2 बार हो। जैसे 4 भी आपका 2 बार आ रहा हो। जब 0 से लेके m-1 सारे नंबर 2 बार आ रहे हैं, तो ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसमें कुछ भी कर लो तुम, तो जीसीडी तुम्हारा कितना भी ऐड कर लो, तो जीसीडी तुम्हारा आई ही रहेगा। तो लेट्स से ये आई था मेरा, आई क्या होगा इस केस में? तुम ही बताओ। 5 ही होगा, क्योंकि 0 से लेके 4 2 बार आ रहे हैं, है ना? और रिमाइंडर बेसिकली 5 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। तो अब जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें तुम कुछ भी ऐड करते रहो, तुम 2 ऐड करो, तो यहाँ पे 0 की जगह 2 आ जाएगा, बट कोई ना कोई ऐसी जगह बन जाएँगी जहाँ पे तुम्हारे 2 0 आ जाएँगे, ठीक है? तो वो 0 0 तुमने यहाँ से हटाने की कोशिश करी, 0 यहाँ पे अपीयर हो गए, और 0 यहाँ से हटाने की कोशिश करोगे, 0 कहीं और अपीयर हो जाएँगे, और लोकेशन तुम्हें पता है कहाँ पे अपीयर होंगे। जैसे 0 में तुमने 2 ऐड करा, तो ये कहाँ पे अपीयर होगा? ये 5 4 माइनस 2 2 पे ही अपीयर होंगे इस केस में तो। पर अगर तुम जैसे 1 1 पे 1-1 पे छेड़खानी करते हैं, 1-1 था, 2-2 था और 3-3 था। लेट्स से यही टोटल बन सकता है ना 5 के केस में तो। 0 भी 2 बार, 1 भी 2 बार, 2 बार। तुम 1 को अगर तुम क्या बनाने की कोशिश करो, 0 कैसे बना सकते हो तुम? 4-4 ऐड कर दो दोनों तरफ। जब तुम 4 ऐड कर दोगे तो
ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 है वो 4 4 हो जाएगा, जो 1 है वो 0 हो गया, जो 2 है वो 2 प्लस 4 कितना होता है, 6 होता है, वो 1 1 हो जाएगा, और जो 3 पे रखा है वो पक्का तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी ठीक है 4 हो गया, जो तुम्हारा 4 पे रखा था वो 4 प्लस 4 तुम्हारा 8, ये 2 2 हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। तो 0, 1, 2, 3 मतलब तुम देखा जो होगे तो बेसिकली कोई ऐसे नंबर आई एग्ज़िस्ट करता है क्या, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कभी भी तुम चेक करो तो 2 नंबर मतलब हमेशा ऐसे निकले जिनका जीसीडी आई हो। तो वो कैसे चेक कर सकते हो कि तुम्हारे जीसीडी सारे 0 से लेके m-1 सारे नंबर 2 बार प्रेज़ेंट होने चाहिए एट लीस्ट। 2 बार प्रेज़ेंट होंगे तो तुम कुछ भी मतलब कुछ भी ऐड करो तो उसपे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इधर से हट के उधर चला जाएगा, पर 0 कहीं न कहीं अपीयर हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई केस है कि तुमने बचा लिया ऐसा होने से, तो तुम बोल दोगे कि अच्छा चलो ठीक है, इस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग तो तुम बच गए, तुम नेक्स्ट नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करो। तो इतनी चेकिंग अब हम लगा रहे हैं, तो चेकिंग हम ऐसा नहीं है कि चेकिंग x इक्वल टू हम 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तक मतलब या फिर बड़े-बड़े नंबरों के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। चेकिंग हम बस n/2 तक ही कर सकते हैं, क्योंकि अब सब बातें रिमाइंडर की टर्म्स में हो रही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है ओरिजिनल नंबर पे हम चेकिंग कर रहे हैं। रिमाइंडर तो बेसिकली n/2 का कितना हो जाएगा, n/2 ही n/2 माइनस 1, ठीक है, n/2 माइनस 1, और ये सारे नंबर 2 बार होने चाहिए, ठीक है। अगर तुमने कोई भी नंबर इससे बड़ा ले लिया n/2 या तो n ही ले लिया, तो n के लिए ये जो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि भाई पक्का गलत है ये अरे, वो बोलने के लिए मेरे को नंबर रिमाइंडर कितने होने चाहिए, 0 2 बार आना चाहिए, 1 2 बार आना चाहिए, और n भी 2 बार आना चाहिए, n-1, पर ये कभी पॉसिबल है नहीं। क्योंकि जब ऐसा सिनेरियो हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे 2n एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी ये 2 बार आएगा और तभी तुम नो बोल सकोगे यहाँ पे, है ना? इसके नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब बी तुम 1 कर दोगे और नो बोल सकोगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास टोटल नंबर तो n है, तुम आधे नंबर यूज़ कर सकते हो एज़ मॉड्यूलस, ठीक है? क्योंकि हर नंबर की रिपीटिशन तुम्हें एटलीस्ट 2 चाहिए, ठीक है? 3 लोगे तो तुम बोलोगे भाई n/3 ही नंबर तुम ले सकते हो, पर 3 ज़रूरी नहीं है, 2 भी काफ़ी है हमारे लिए, 2 ज़ीरोज़ भी काफ़ी है ना? पर 2 ज़ीरो की गारंटी होनी चाहिए। 2 ज़ीरो की गारंटी ये नंबर दे रहा है कि भाई और सारे एलिमेंट जब 2 बार हैं, तो इसकी गारंटी है कि 0 भी 2 बार हमेशा ही अपीयर हो जाएगा, ठीक है? चाहे 0 को तुम 1 बना दो, तो वो किसी न किसी और नंबर की जगह 0 अपीयर हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है कि गारंटी कैसे प्रोवाइड करोगे तुम, 2 ज़ीरो की गारंटी है बेसिकली, ये पूरा लूप चला रहे हैं मैं कि i के कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैंने इस नंबर का रिमाइंडर चेक करा, तो 2 ज़ीरो की पहले तो मेरे को पता था ये 2 ज़ीरो हैं, वरना ऑब्वियसली 2 ज़ीरो हैं, और 2 ज़ीरो की गारंटी है, क्योंकि जब सारे 0 भी 2 बार है, 1 भी 2 बार है, और m-1 इस केस में i-1 जब सारे नंबर 2 बार हैं, इसका मतलब 0 की गारंटी है, यानी कि मतलब जो 2 नंबर ऐसे ज़रूरी हैं जो आपके डिवाइड हो रहे होंगे i से, और ऐसा है तो रिटर्न कर दो नो, अदरवाइज़ तुम कुछ कह नहीं सकते भाई, रिटर्न कर दो येस, क्योंकि तुम पक्का ना कुछ कह नहीं सकते, नहीं इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी ऐसा नंबर मेरे को नहीं मिला जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं बोल सकूं कि जो मेरा एरे एलिमेंट है ये हमेशा मेरा गलत हो जाएगा, मतलब इसका जीसीडी कुछ ना कुछ वो आई निकल आएगा, ठीक है। यही चीज है बस, और कुछ नहीं है। चलो भाई रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप समझ आ गया, कोड तुम्हारे सामने है, कोड तो काफ़ी सिंपल है, लॉजिक भी मैंने बता ही दिया है। तो तुम्हें गारंटी चेक करनी है कि तुम्हारा नो आंसर है, तो उसकी गारंटी ऐसे है कि कोई ना कोई आई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 भी 2 बार हो, 1 भी 2 बार हो, और i-1 भी 2 बार हो। रिमाइंडर बेसिकली उसका रिमाइंडर 2 बार आना चाहिए, सारे रिमाइंडर 2 बार आने चाहिए, ठीक है? ओके गाइस बाय।